Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again. Fundamentals of Public Administration is the course, and the course code is MPA 406. And today we have a lecture number 17. So before we move on towards our today's topic of discussion, let's have a brief reflection of what we have discussed in our previous lecture. So in our previous lecture, we have talked about critical thinking. Now, what is critical thinking? So in simple words, critical thinking means that thinking to think, unlimited thinking, thinking outside the box. So when we say that thinking outside the box, what does it mean? What is that box जिससे बाहर आने की बात कर रहे हैं, जिस box से बाहर thinking की जरूरत है? Like for example, if you think that I cannot do this thing, or this thing is really difficult, or how I will do this thing. So if all the time you're thinking like this, it means that you are in the box. Your thinking is trapped in a box. So you need to come out of that box. So जब हम public sector of Pakistan की बात करते हैं, तो for example, if we keep on doing same things every day, we will keep on getting same results every time. तो अगर हम अपने working methods को improve नहीं करते, अगर हम अपने structural changes नहीं लेके आते, अगर हम अपनी rules and regulations को improve नहीं करते, अगर ground reality के मुताबिक उसको नहीं करते, तो definitely we cannot come out of the comfort zone. We cannot come out of that box. So यहाँ पे ये ज़रूरत है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसको हम आज कैरी ऑन करेंगे, कि we need to come out of the comfort zone and we need to move towards the zone of opportunity, zone of effort. So हमें अपनी वो habits जो कि हमें poor performance की तरफ लेके जाते हैं, हमारी वो working methods जिसकी वजह से हमारी organization आगे नहीं जा पा रही, उन poor working methods को, उन ऐसे तरीक़ेकार को, ऐसे procedures को जो हमारी organization को hurdle create कर रहे हैं उसको आगे बढ़ने में, उनको छोड़ के हमने new ways of जो working है, जो better methods of working है, उसकी तरफ हमने move करना है. और उसके लिए definitely we need to be a good critical thinker. Definitely we need to be creative, we need to be innovative. और क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी है कि आज से आप सोचना शुरू करें कि जो आप काम कर रहे हैं, जैसे एज ए स्टूडेंट जब आप सोचते हैं कि एज ए स्टूडेंट आप किस तरह बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, आज तक जितने स्टूडेंट्स ने स्टडीज़ की, क्या आपने भी वैसे ही स्टडी करना है या आप अपनी स्टडीज़ के लिए कोई बेहतर तरीका आप सोच सकते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं कि जो इस वक्त बेस्ट जिन स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, तो उनका जो है स्टडी का मेथड क्या था, वो किस तरह से अपनी असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करते थे, वो किस तरह से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को प्रिपेयर करते थे, वो किस तरह अपनी प्रेजेंटेशंस तैयार करते थे. तो एक तो डेफिनेटली आप उनको देखें जिन लोगों ने बेंचमार्क सेट किए हैं, जिन्होंने हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं दुनिया में, आप उन स्टूडेंट्स को देखें. उसके साथ साथ आप देन अपनी क्रिएटिविटी को लेके आए कि आप क्या कर सकते हैं, उसमें क्या ऐड कर सकते हैं. तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. और इसी चीज़ को लेके हम कैरी ऑन करेंगे आज के डिस्कशन को कि हाउ वी कैन ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान. और जब हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट की, तो थिंकिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट थिंकिंग, ऑल थिंकिंग इज नॉट ऑफ द सेम क्वालिटी. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रिचर्ड पॉल एंड डॉक्टर लिंडा एल्डर, and they are from the Foundation for Critical Thinking Press 210. Now, according to them, all thinking is not of the same quality. Now, thinking is of two types. We have aimless thinking and we have high quality thinking. Now, the question is, when we talk about aimless thinking, what is it? So, let us have a look at it कि aimless thinking से क्या मुराद है. We are naturally proficient at daydreaming and fantasizing. ये बड़ी कॉमन सी बात है कि लोग डे ड्रीमिंग करते हैं, सुबह के वक्त मतलब जागते में जो लोग ख्वाब देखते हैं, और हम फैंटेसाइज करते हैं, हम चीज़ों को बहुत मतलब फैंटेसीज में चले जाते हैं कि मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा, मैं इस तरह बन जाऊँगा, मैं उस तरह बन जाऊँगा. सो दिस इज़ गुड, दिस इज़ नॉट बैड. लेकिन हद से ज़्यादा जब आप ये करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली वो फिर आपको एक एमलेस थिंकिंग की तरफ लेके जाती है. लैक्स ए पर्पस.
आप एक डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आप फैंटेसाइजिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका कोई पर्पस नहीं है, विदाउट पर्पस आप कर रहे हैं, तो अगर आपकी थिंकिंग का कोई पर्पस नहीं है, तो ऑफ कोर्स दैट इज एमलेस थिंकिंग. फ्यू पीपल नीड ट्रेनिंग इन एमलेस थिंकिंग. तो एमलेस थिंकिंग करने के लिए कोई खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, और ज्यादातर जो मेजॉरिटी लोग हैं ऑटोमेटिकली दे आर गुड इन एमलेस थिंकिंग. Thinking that is random, that roams aimlessly is not critical. Meaning that कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप अपने घर में बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं. आप एक चीज आपके दिमाग में आती है, अभी वो चीज आप पूरी तरह सोच नहीं पाते, तो दूसरी चीज आपके दिमाग में आती है, फिर तीसरी, फिर चौथी. तो मुख्तलिफ चीजें रैंडमली आपके दिमाग में आ रही हैं और तमाम फैक्टर्स का, तमाम इवेंट्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. तो बजाय ये कि आप उस इवेंट को वन बाय वन उनके बारे में सोचना शुरू करें, उन इवेंट से आप कोई लर्न करें, उन इम्प्रूवमेंट से आप ये लर्न करें कि आप नेक्स्ट टाइम जब वो इवेंट होगा तो आप किस तरह से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं. तो अगर तो आप इवेंट्स के बारे में, जिन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं, उनको आप वन बाय वन सोचें और उससे आप कोई लर्न करने की, एक्सपीरियंस हासिल करने की कोशिश करें. दैट हैज़ ए पर्पस एंड दैट इज क्वालिटी थिंकिंग. लेकिन अगर वो रैंडमली आ रही हैं चीज़ें, आप कभी अपने जो आपने कहीं बर्गर खाया था आप उसका सोच रहे हैं, उसके साथ ही आपको कोई मोबाइल फ़ोन याद आ गया, और उसके साथ साथ अगर आपको अपना एक शर्ट अगर आपने कोई परचेज की थी, आप उसका कलर आपके दिमाग में आ गया कि क्या बात है जी, मैंने ये कलर की शर्ट ली थी. और अभी कोई भी बात आप सोचते हैं और वो उसको कंक्लूड किए बगैर आप नेक्स्ट जो है चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं. सो दैट इज़ रैंडम एंड दैट इज़ थिंकिंग दैट इज़ that roams aimlessly. So that is not critical. Now, the next type is high quality thinking. Now, high quality thinking has a purpose. So whatever you think, that has a purpose, that has a objective. आपके दिमाग में जो चीज़ भी आ रही है, आप जिस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं, किसी मकसद से सोच रहे हैं कि what is the purpose behind that thinking. Now, we originate and produce with a sense of why we are doing so. So हमारे दिमाग में एक सेंस होता है, हम एक पर्पस होता है कि हम जो काम भी कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. एंड देन व्हेन थिंकिंग टेक्स ऑन अ चैलेंजिंग टास्क, द माइंड कम्स अलाइव, ready for intellectual labor for the achievement of its goal. So this is called high quality thinking. तो high quality thinking के अंदर definitely you need to get training as well. अगर आप उसमें, if you are not good in it, so you can get training from like any place जहाँ से आपको high quality thinking की training दी जाए. तो this is really very important कि आज से हम ये तय कर लें कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो definitely उसको किसी पर्पस से सोचें. और जब आप अपनी, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, अपनी पास्ट स्टडीज के बारे में सोच रहे हैं, तो एक पर्पस से सोचें कि जो आपने अगर हायर ग्रेड स्कोर किए थे तो उसके पीछे रीजंस क्या थी, और वो जो आपके स्टडी मेथड से उनको मजीद बेहतर कैसे किया जा सकता है. तो जब आप ये सोचेंगे एक पर्पस के साथ और उसको जब कंक्लूड करेंगे, उससे जब लर्न करेंगे, तो आपकी जो एग्जिस्टिंग स्टडी इस वक्त जो आप कर रहे हैं उसके वर्किंग मेथड्स इंप्रूव हो जाएंगे. सो नाउ यू सी दैट कि अगर आप एक पर्पस के साथ, एक मकसद के साथ अगर आप कोई चीज़ सोचते हैं तो डेफिनेटली आपके प्रेजेंट के अंदर इंप्रूवमेंट आती है, आपकी परफॉर्मेंस के अंदर इंप्रूवमेंट आती है, एंड दैट इज कॉल्ड हाई क्वालिटी थिंकिंग. नाउ द क्वेश्चन इज, शुड यू बिलीव एवरीथिंग यू सी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अक्सर ये देखा गया कि लोग जो देखते हैं उस पर एतबार करते हैं, बट लेकिन यहाँ पे ये याद रखना चाहिए कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड नॉट बिलीव वट एवर वी सी. नाउ जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वी डेवलप ए परसेप्शन इन आवर माइंड अबाउट दैट थिंग, एंड दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट परसेप्शन, वी ऑफन सी एंड हियर व्हाट वी वांट टू सी एंड हियर. सो नाउ यू सी दैट कि हमारे माइंड में एक ऑलरेडी हमने एक परसेप्शन डेवलप की हुई है. हम किसी भी चीज को, हमारी एक हमारा माइंडसेट होता है,
और जो चीज़ हम देखना चाहते हैं, जो चीज़ हम फील करना चाहते हैं, जो चीज़ हमारे दिमाग में होती है, वही हमें नज़र आ रही है और वही हम सुन रहे हैं। Based upon our past experiences, interests, motives, expectations to stay within our comfort zone. तो जो लोग अपने comfort zone में रहना चाहते हैं वो अपने motives के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के मुताबिक हर चीज़ को देख रहे होते हैं और हर चीज़ के बारे में उन्होंने पहले से एक माइंडसेट बनाया होता है। तो यस या नो ऑलरेडी उनके माइंड में पहले से हो चुका होता है और वो एज ए फॉर्मेलिटी चीज़ों को देख रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने पहले से माइंडसेट बनाया हुआ है। और ऐसे लोग जो हैं, दे आर इन देयर कंफर्ट जोन एंड विच इज़ नॉट गुड। सो लेट्स हैव ए लुक एट दिस पिक्चर। ओके, आपको क्या नजर आ रहा है? ओके, इस पिक्चर को देख के अगर आप मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ पे जो पिक्चर में किस एज की एक फीमेल नजर आ रही है? शी इज यंग और ओल्ड? नाउ दिस पिक्चर डिस्क्राइब्स आवर परसेप्शन। आपकी जो परसेप्शन है कि एक ही पिक्चर को देख के आपके दिमाग में पहली कौन सी पिक्चर आ रही है। सो एक्चुअली अगर आप देखें तो इसमें देयर आर टू पिक्चर्स इन इट। एक यंग गर्ल की पिक्चर है और इसी पिक्चर के अंदर एक ओल्ड लेडी की पिक्चर है। नाउ यू सी दैट कि वी हैव द सेम पिक्चर, बट आप पहले एक यंग लेडी को देख रहे हैं, यंग गर्ल को देख रहे हैं, या एक ओल्ड लेडी को देख रहे हैं। सो हमारी जो परसेप्शन है वो हमें एक खास डायरेक्शन में लेके जा रही है और उस डायरेक्शन के मुताबिक फिर हमारी थिंकिंग शुरू हो जाती है। तो मीनिंग दैट इससे हम क्या लर्न करते हैं इस पिक्चर से कि एक ही सिचुएशन को, एक ही तरह की सिचुएशन को, एक ही तरह के हालात को जब हम देखते हैं तो कोई चीज़ आपको पहले नज़र आ रही है और कोई चीज़ आपको बाद में नज़र आ रही है, या हो सकता है कि आपको दो पिक्चर्स नज़र ना आ रही हो, आपको एक ही पिक्चर यहाँ नज़र आ रही हो। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, आराम से इसको देखें, और अगर आप इसको जब बहुत फोकस करेंगे तो आपको दोनों पिक्चर्स यहाँ पे नज़र आएंगे। So what does the absence of critical thinking look like? Very important factor here that we blindly accept all statements. अगर आप critical thinker नहीं हैं, अगर आप एक like for example आप comfort zone के अंदर हैं, if you are not a good critical thinker, so we blindly accept all statements. जो person जो बात भी कह देता है आप उसके ऊपर believe कर लेते हैं। It means that you are not a good critical thinker. आप उसके ऊपर सोचते ही नहीं है कि जिस पर्सन ने ये बात की है क्या उसकी वो बात क्रेडिबल है, ऑथेंटिक है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, उस पर्सन की अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उस पर्सन की अपनी कॉम्पिटेंस क्या है। सो इस तरह की चीजें अगर आप नहीं सोचते तो इट मीन्स यू आर नॉट ए गुड क्रिटिकल थिंकर। वी ब्लाइंडली बिलीव टीवी कमर्शियल्स। टीवी के ऊपर आप बहुत से एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। नाउ हर कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट लेके आ रही है, अपनी सर्विसेज लेके आ रही है, एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट एफर्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर वेदर वो वैल्यूएबल हैं, बेनिफिशियल हैं या नहीं, उसका कोई आपको रियल बेनिफिट है या नहीं, लेकिन अगर आप उन खूबसूरत कमर्शियल्स से इम्प्रेस हो के वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हैं वो ले लेते हैं तो ये ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि तमाम जो टीवी कमर्शियल्स हैं आपने इमीडिएटली उनके ऊपर बिलीव नहीं करना, बल्कि आपने उनको एनालिसिस करना है, अपनी नीड्स के साथ आपने उसको रिलेट करना है कि क्या वाकई आपको इस चीज़ की नीड है या आप एक उसमें आ गए हैं, एक उन्होंने आपको इन्फ्लुएंस कर लिया है और जो वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, वेदर आपकी वो नीड है या नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट सर्विस आप ले लेते हैं। सो ऑफ कोर्स यू वेस्ट योर मनी एंड टाइम। वी ब्लाइंडली फॉलो अदर्स। ओके, of course we need to follow the good people, of course we need to follow those persons who are really competent, लेकिन we should not follow them blindly. तो गुड क्रिटिकल थिंकर्स आर दोज पीपल, जब हम पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं कि वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट योर कॉलीग्स और वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट जूनियर्स और सीनियर्स और योर बॉसेस, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नॉट फॉलो देम ब्लाइंडली. So what we need to do here is we need to argue, we need to do that brainstorming, we need to give our point of view. तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के बाद if you are satisfied then we can follow others.
ऑफ कोर्स अगर कोई आपको वाकई अच्छी बात बता रहा है और वो अगर आपने देखा है कि दैट थिंग इज ऑथेंटिक, तो डेफिनेटली अच्छी बात को फॉलो करने में देयर इज नो प्रॉब्लम, बल्कि वो तो करनी चाहिए। लेकिन ब्लाइंडली आपने उसको नहीं करना, आपने उसका सोर्स देखना है, उसकी ऑथेंटिसिटी देखनी है, उसकी क्रेडिबिलिटी देखनी है, और अगर ये तमाम करने के बाद वो चीजें पॉजिटिव आ रही हैं तो डेफिनेटली वी कैन फॉलो अदर्स, अदरवाइज नॉट। Now people don't always use critical thinking skills, so it is not uncommon for people to say, okay, आपसे ये क्वेश्चन है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट कभी आपने अपने बारे में दी। Like for example, I thought it was not a big deal. I just was not thinking. How was I supposed to know? I cannot think of everything. My bad luck. तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अपनी जॉब लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में कोई ना कोई सेंटेंस हमने ये बोला होता है। तो इट मीन्स दैट कि जब हम ये बात करते हैं इसका मतलब ये है कि वी आर नॉट अ गुड क्रिटिकल थिंकर। पीपल हु हैव पुअर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आर देयर ओन वर्स्ट एनिमीज। तो जो लोग थिंकिंग टू थिंक नहीं करते, जो लोग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात नहीं करते, जो इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी की बात नहीं करते, जो ब्लाइंडली हर चीज के ऊपर बिलीव करते हैं, तो डेफिनेटली दे आर देयर ओन वर्स्ट एनिमीज। वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं, वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आज से हम ये चीज तय कर लें कि हम जो काम भी करेंगे हम बड़ा उसके ऊपर गौर करेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे और फिर एक्शंस लेंगे। और ये बिल्कुल ऐन इस्लामी बात है कि पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो। दिस इज व्हाट क्रिटिकल थिंकिंग इज। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस improving efficiency and effectiveness in the public sector of Pakistan, we talk about questioning mind. So questioning mind is a necessary condition to the development of critical thinking. So this is really very important. So people who have a questioning mind, they are wonderful performers. Like for example, people who ask questions. Whether it is office meeting, whether it is some tea party going on, whether it is some formal meeting going on, whether it is a social meeting going on, या family meeting going on, they have a questioning mind. तो जो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, जो लोग आर्ग्यू करते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, इट मीन्स दे आर गुड क्रिटिकल थिंकर्स। तो यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगा कि हम सबको एक गुड क्रिटिकल थिंकर बनने की जरूरत है। पाकिस्तानी पब्लिक सेक्टर को हमने आगे लेके जाना है। पाकिस्तानी पब्लिक सेक्टर के अंदर हमने डेवलपमेंट लेके आनी है, इसको हमने ग्रो करना है, तो डेफिनेटली हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। एक फिलोसफर ने एक बहुत खूबसूरत बात की कि यू आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू से, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू नॉट से। इस चीज की जरा डेप्थ में जाने की कोशिश करें कि आप ना सिर्फ इस बात के रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो आप बात करते हैं, आप उस चीज के भी रिस्पॉन्सिबल हैं जो आप बात नहीं करते। तो इट मीन्स कि अगर आप खामोश रहते हैं, अगर आप साइलेंट रहते हैं, तो आप सम टाइम आपको उसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ऑफिस के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर, ऑफिस मीटिंग्स के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते, अगर आप आर्ग्यू नहीं करते, अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देते, इट मीन्स के यू आर नॉट यूजिंग योर कॉम्पिटेंस। आप अपना इनपुट नहीं दे रहे, और अगर रॉन्ग डिसीजंस हो जाते हैं आपकी पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन मेकर्स के साथ साथ आपके ऊपर भी आती है। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि वी मस्ट पार्टिसिपेट, और उसके लिए जरूरी है कि वी शुड ट्राई टू डेवलप अ क्वेश्चनिंग माइंड। नाउ टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में फिलोसोफर्स एंड रिसर्चर्स दे से दैट इट इज कॉल्ड द लैंडस्केप ऑफ द माइंड, एंड वी आल्सो कॉल इट सॉफ्टवेयर ऑफ ब्रेन. So when we talk about words, it can have two kinds of meaning, denotative and connotative. Let's see what it is.
Denotative means that it is a dictionary meaning. So like for example, what is an apple? So it is something edible, usually rounded fruit is called an apple according to dictionary meaning. And now what about connotative? Suggestions beyond the dictionary meanings. So this is really very important that as a good critical thinker, आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि what are the dictionary meaning of words. You need to go beyond the dictionary meaning of words. आप जब interpretations करते हैं, like for example, different projects चल रहे हैं, different activities आपकी organization के अंदर चल रही हैं, आपकी communication हो रही है, conversation हो रही है, तो आपको सिर्फ words के meaning की हद तक नहीं रहना, उसकी जो interpretation है, जो intentions होती हैं, जो person आपको कोई बात बता रहा है ऑफिस में, आप उसकी जो intentions हैं, जो उसकी hidden intentions हैं, उसको understand करने की ज़रूरत है. आप उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, उसकी वैल्यूज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिर्फ वर्ड्स की हद तक मीनिंग तक ना जाएं. वी नीड टू गो बियॉन्ड द डिक्शनरी मीनिंग्स, और उसके लिए जरूरी है कि वी नीड टू गो फॉर हाई क्वालिटी थिंकिंग, जो हमने पहले डिस्कस किया. सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड एप्पल? सो व्हेन यू गो बियॉन्ड डिक्शनरी मीनिंग, दिस इज what comes in your mind that apple is, जैसे आपने डिक्शनरी मीनिंग में कहा, पीछे हमने बात की कि इट इज समथिंग विच इज एडिबल एंड यूजुअली राउंडेड फ्रूट. जब बियॉन्ड डिक्शनरी मीनिंग आप जाएंगे तो एप्पल का मीन्स दैट एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. एप्पल मीन्स टेस्ट, एप्पल मीन्स हेल्थ, एप्पल कंप्यूटर्स, सो थिंग्स लाइक दैट. तो डिक्शनरी मीनिंग से आप आगे चले गए, एप्पल की आपने डिफरेंट मीनिंग्स बताए, और नाउ यू सी दैट दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन वी थिंक अबाउट डिफरेंट लाइक कम्युनिकेशन जब हो रही है ऑफिस के अंदर, तो आपने डिक्शनरी मीनिंग से आगे जाना है. आपने डेफिनेटली उसके डिक्शनरी मीनिंग को भी अंडरस्टैंड करना है, लेकिन उसके साथ साथ यू नीड टू गो बियॉन्ड द डिक्शनरी मीनिंग एज वेल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन वेल. Now, what you need to do for brain fitness, according to Dr. Richard Paul and Dr. Linda Elder. For brain fitness, the first thing is, like body, the brain has its own form of fitness or excellence. Now, to achieve brain fitness, the brain must learn to take charge of itself, energize itself, press forward when difficulties emerge, and become attentive and reflective. तो आप अपनी ब्रेन को फिटनेस की तरफ लेके जा सकते हैं, जैसे बॉडी को एक्सरसाइज के जरिए आप फिट कर सकते हैं. इसी तरह ब्रेन को फिट करने के लिए जरूरी है कि आप अटेंटिव हों, रिफ्लेक्टिव हों, प्रोएक्टिव हों, आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो क्विक होने चाहिए, आपकी जो थिंकिंग है वो क्विक होनी चाहिए, आप क्रिटिकल थिंकर हों, आप एक डिसीजन मेकर हों. सो इस तरह की जब आप चीजें करेंगे तो डेफिनेटली दैट मूव्स यू टुवर्ड्स ब्रेन फिटनेस. Now, according to Henry Ford, thinking is the hardest work, which is probably why so few engage in it. So, critical thinking is not an easy thing to do. इसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, आपको मुख्तलिफ लोगों की राय लेनी पड़ती है, सजेशंस लेनी पड़ती हैं. सो इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग जो प्लेट में रख के आपको दी और आपने उसको खा लिया. So critical thinking is one of the hardest thing to do. So that is why according to Henry Ford, बहुत कम लोग जो है वो critical thinking करते हैं. According to William Lyon, some people's mind close up and they live on their intellectual fat. Now this is really very interesting. जब हम public sector of पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे like for example कि आपको एक जॉब मिली, आप entry level पे आए, फिर आपने वहाँ पे 5 साल काम किया, 10 साल काम किया, 20 साल काम किया, तो जो डिग्री आपने ली थी, लाइक आपने मास्टर्स की डिग्री जो है वो अगर आपने आज से 20 साल पहले ली थी और 20 इयर्स तक आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, तो बात यह है कि वो जो 20 इयर्स पहले आपने डिग्री ली थी, क्या उसको जंग तो नहीं लग गया? क्या आपने क्या इंप्रूवमेंट लेके आए हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल
आप अपने एक्सपीरियंस से आपने अपनी कौन सी कॉम्पिटेंस को इंक्रीज किया है। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि उनका बहुत तजर्बा है, 10 साल का तजर्बा है, 20 साल का तजर्बा है, 30 साल का तजर्बा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि रियल जो तजर्बा है, रियल तजर्बा ये है कि आपने इन 10, 20, 30 सालों में क्या सीखा। अगर तो आप बुलेट्स में बता सकते हैं कि आज से 20-30 साल पहले आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल ये था, आपका एजुकेशन लेवल ये था, आपका स्किल लेवल ये था, आप ये काम नहीं कर सकते थे, अब ये काम आप कर सकते हैं, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं, आपने क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लेके आए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसीज कितनी इंप्रूव हुई हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इंप्रूव हुई हैं। तो जब आप ये बात बताते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल एक्सपीरियंस and that is authentic. So as a good critical thinker, this is really very important to know कि ये ना हो कि हम सिर्फ ये कहें कि जी मेरा 20 साल का तजर्बा है, मेरा 30 साल का तजर्बा है, लेकिन जब आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स की बात हो, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स की बात हो, आपकी कॉम्पिटेंस की बात हो, तो वहां पे आप वहीं खड़े हैं जो 20 साल पहले आपने सीखा था अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, और 20 इयर्स आपने जॉब करने के बावजूद अगर वहां से कुछ लर्न नहीं किया, तो ये एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, मैं ये कहूँगा। तो आप सब स्टूडेंट्स को मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप अपनी स्टडीज से सीखें, अपनी थ्योरी को, जैसे मैंने पहले बात की प्रीवियस लेक्चर में कि थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ आप उसको मैच करके देखें, अप्लाई करके देखें, और जब आप अपनी जॉब पे जाएं तो डेफिनेटली वहाँ पे आप ये देखें कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप क्या लर्न कर सकते हैं। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम हैज़ नो हॉलीडे, टाइम इज मूविंग वेरी फास्ट। तो आप टाइम को ना रोक सकते हैं, ना पास कर सकते हैं, ना रिवाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वक्त के साथ साथ चलें, बल्कि मैं तो आपको ये कहूँगा कि वक्त से आगे चलें, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू आर ए गुड क्रिटिकल थिंकर। Now we are going to discuss some of the thinking errors. ऑफिसेस के अंदर अगर हम ये देखें कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सम टाइम देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, के लोग बात करते हैं कि जी देर आर डिफरेंट इश्यूज, देर आर डिफरेंट चैलेंजेस, और नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो ऑफ कोर्स उसमें से कुछ चीज़ें इंटेंशनल हैं, कुछ चीज़ें अनइंटेंशनल हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द थिंकिंग एरर्स व्हेन वी टॉक अबाउट द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। द फर्स्ट इज द डिनायल। So some people, they refuse to accept the reality. Now again the thing is कि reality कुछ और है और आप जो बात कर रहे हैं वो कुछ और है। तो जो लोग reality को accept नहीं करते, जो लोग ground reality को accept नहीं करते, that is one of the major thinking errors. और जब आप denial में चले जाते हैं तो definitely जो भी आप decision लेंगे, जो भी आप analysis करेंगे, वो incorrect होगा। Projection, we see in others what is really happening to us. Very important thing कि हम दूसरों के अंदर वो देख रहे हैं जो एक्चुअली हमारे साथ हो रहा है। हमने पब्लिक सेक्टर में देखा कि लोग अगर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं कि जी ये पर्सन ठीक काम नहीं कर रहा, वो पर्सन ठीक काम नहीं कर रहा, तो आई थिंक सबसे पहले उस पर्सन को अपने आप को देखने की जरूरत है कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है, उसका अपना परफॉर्मेंस लेवल क्या है, उसकी अपनी कॉम्पिटेंसी क्या है। तो मोस्टली हमने ये देखा कि जो हमारे अंदर अपने वीकनेस होती है वो हमें दूसरों के अंदर नजर आ रही होती है, एंड दैट इज अनदर मेजर थिंकिंग एरर। देन वी टॉक अबाउट रैशनलाइजेशन। सो लाइंग टू आवरसेल्व्स अबाउट द रियल रीजंस फॉर आवर बिहेवियर्स एंड फीलिंग्स, कि हम किसी खास तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं, हमारी कुछ खास तरह की फीलिंग्स क्यों हैं, तो हम उसके बारे में जो रियल रूट कॉजेज हैं उसके बारे में हम अपने आप से झूठ बोल रहे होते। एंड अगेन दिस इज अनदर थिंकिंग एरर। नेक्स्ट थिंकिंग एरर इज पर्सनलाइजेशन, थिंकिंग इन विच द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड एन इंडिविजुअल। अगर आप ये समझते हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आपने अपने कंधों पे उठाया हुआ है, ये पूरा ऑफिस सिर्फ आपकी वजह से चल रहा है, और अगर आप इस ऑफिस में नहीं होंगे तो ये खुदा ना खास्ता क्लोज हो जाएगा, ये काम नहीं कर सकता, तो इस तरह की थिंकिंग जो है दिस इज नॉट करेक्ट। सो जब आप ये सोचते हैं कि इट्स अ टीम वर्क और तमाम लोग मिलकर इस ऑफिस को रन कर रहे हैं, सो दिस इज अ गुड क्रिटिकल थिंकिंग एग्जाम्पल। द नेक्स्ट थिंकिंग एरर इज ऑफ पोलराइज्ड थिंकिंग,
देयर इज ओनली ब्लैक और वाइट, नो ग्रे। सो ये वो उस तरह के लोग हैं जिनको कोई थर्ड ऑप्शन नजर नहीं आता। तो या तो वो ये कहते हैं कि चीजें ठीक चल रही हैं, या वो कहते हैं कि चीजें जो हैं वो ठीक नहीं चल रही। सो वो अपने माइंडसेट के साथ चीजों को देख रहे हैं। सो वो डिफरेंट ऑप्शंस की, अल्टरनेटिव्स की नहीं देख रहे कि हाउ वी कैन इंप्रूव द सिचुएशन। द नेक्स्ट इज catastrophe. Always consider the worst possible outcome all the time. So these are the people, they are always thinking about the worst possible outcome. Now they are focusing कि जी कुछ भी वो करेंगे तो उसका अंजाम जो है, उसका जो रिजल्ट जो है वो बहुत वर्स्ट होगा। सो दे हैव ए नेगेटिव माइंड, उनका उसमें चला जाता है, या शायद हम उसको कह सकते हैं कि ऐसा नेगेटिव माइंड ट्रैप। तो दैट कुड बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल हो सकता है कि ये एक बिग थिंकिंग एरर है कि आप कोई भी एक्टिविटी शुरू करते हैं तो आप उसकी वर्स्ट साइड के ऊपर ज्यादा फोकस करें, और जब आप उसके वर्स्ट आउटकम के ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली जो आपकी एक्टिविटी होगी, आपकी जो उसके ऊपर बिगनिंग होगी, जो आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका एक बैड इंपैक्ट होगा, क्योंकि यू विल नॉट बी ऑप्टिमिस्टिक, इंस्टेड यू विल बी पेसिमिस्टिक। आप ब्राइटर साइड को देखने की बजाय आप नेगेटिव साइड पे जब फोकस करेंगे तो डेफिनेटली जब आप नेगेटिव साइड को ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज रिफ्लेक्ट होगी आपकी परफॉर्मेंस में, और जो आपकी परफॉर्मेंस को वो डिक्लाइन की तरफ लेके जाएगी। सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन, फोकसिंग ऑन वन डिटेल ऑफ अ सिचुएशन एंड इग्नोरिंग द लार्जर पिक्चर। नाउ ये वो पब्लिक सेक्टर में हम बात करते हैं कि आप किसी एक फैक्टर को बेस करके आप अपने तमाम डिसीजंस ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन की परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम है, आपका जो सबऑर्डिनेट है, आपका जो टीम मेंबर है, उसकी कोई एक फैक्टर है, लाइक फॉर एग्जांपल उसकी जो स्लो काम करता है, अगर कोई एम्प्लॉय, तो नाउ स्लो काम करने की वजह से इफ यू बिलीव दैट कि उसका एज ए ओवरऑल जो आपके एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं है, सो दैट इज नॉट गुड। आप स्लो परफॉर्मेंस के रूट कॉजेज को फाइंड आउट करें कि व्हाट आर द रूट कॉजेज के एम्प्लॉय जो है वो परफॉर्म स्लोली कर रहा है। उसके साथ साथ ये देखें कि उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। तो जब आप स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करेंगे तो डेफिनेटली, और जब आप रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करेंगे स्लो परफॉर्मेंस के, तो स्ट्रेंथ्स को एक तरफ आप हाईलाइट करें, दूसरी तरफ आप रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करेंगे स्लो परफॉर्मेंस के, तो डेफिनेटली आप मोटिवेट कर सकते हैं उस एम्प्लॉय को। अनदर थिंग इज यू कैन सेंड दैट एम्प्लॉय फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो आप उसको ट्रेनिंग वर्कशॉप में भिजवा दें जहां पे वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है। हो सकता है कि वो अपनी जॉब के साथ जो है उसको सेटिस्फाइड ना हो सकता है कि जो इक्विपमेंट उसको दिया गया है दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट या आउटडेटेड इक्विपमेंट हो, या हो सकता है जो कंप्यूटर उसको दिया गया है वो स्लो है। सो ये बहुत सारी पॉसिबल रूट कॉजेज हो सकती हैं जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो स्लो है। एंड देन ओवर जनरलाइजेशन, drawing broad conclusions on the basis of a single incident। एक एग्जाम्पल को सामने रख के आप कंक्लूजन अगर दे देते हैं, दैट इज अगेन अ मेजर थिंकिंग एरर। कि आप एक एग्जाम्पल को सामने रख के तमाम एक ओवरऑल कंक्लूजन जो है अगर आप देते हैं तो दैट इज इनकरेक्ट। सो एज ए गुड क्रिटिकल थिंकर आपने तमाम सिचुएशन को सामने रखना है, ओवरऑल सिचुएशन का एनालिसिस करना है, एंड यू शुड नॉट फोकस ऑन ओनली वन इंसिडेंट, यू नीड टू फोकस ऑन ऑल इंसिडेंट्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ we are going to discuss the major characteristics of critical thinkers. So what are the major characteristics of critical thinkers? The first is they strive for understanding. Now very important, like critical thinkers, they are always trying their best for maximum understanding. They are honest with themselves. So honesty is the best policy. So with honesty we can do wonders. So this is really very important. So critical thinkers are honest with themselves. आप critical thinkers अपने आप से झूठ नहीं बोलते, और जब आप अपने आप से झूठ नहीं बोलते, it means that you are moving towards right direction. Base judgment on evidence. जब भी वो कोई जजमेंट देते हैं critical thinkers, जब भी वो कोई डिसीजन लेते हैं, it is based on only evidence.
ऑथेंटिक बात के ऊपर वो जजमेंट देंगे, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होगी उसको सामने रख के वो जजमेंट देंगे, और जिस चीज के बारे में वो श्योर होंगे, ऑथेंटिक होगी, एक लॉजिकल कोई रीजन होगी, उसके ऊपर वो जजमेंट देंगे, बजाय ये कि वो इमोशनल बेसिस के ऊपर जजमेंट दें. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट for critical thinkers. And then critical thinkers are interested in other people's ideas. Very important कि दूसरे लोगों के क्या ख्यालात हैं, वो क्या सोचते हैं, how we can improve our performance. Like for example, good critical thinkers, they focus on those point of views more who are totally opposite to them. Like for example, आप अगर एक good critical thinker हैं तो आप दूसरे के जो टोटल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उसको जरूर फोकस करते होंगे. आप ये जरूर सोचते होंगे कि ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है, व्हाट आर द रूट कॉजेज, रीजन क्या है जिसकी वजह से दिस पर्सन हैज ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गुड क्रिटिकल थिंकर्स दे आर इंटरेस्टेड इन अदर पर्संस और अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यूज. सो जो हमने पहले बात की थी कि आई कैन इंप्रूव माई पॉइंट ऑफ व्यू if I include your point of view in my point of view and vice versa. So this is really very important कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने डिसीजंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान व्हेन वी एक्सेप्ट फीडबैक, व्हेन वी एग्री टू डिसएग्री पॉजिटिवली, व्हेन वी अलाउ आवर सबऑर्डिनेट्स to disagree with us. Of course, when we allow our employees to have a positive conflict. So in this way, of course, we can do wonders and we can achieve which others think that it is impossible. So our public sector can do that thing, which is not possible for others. So this is really very important that we need to involve people, we need to involve people from all levels of management. So why not we involve people from the low level management, why not we involve people from the middle level management, and why not we involve people from the top level management. So by involving all these levels of management, we can move towards wonderful decisions and wonderful, of course, structure and wonderful rules and regulations, and of course we can improve our performance. Good critical thinkers control their feelings and emotions. Another very important characteristic of a good critical thinker, that they are able to control their feelings and emotions. Very important thing. If you are unable to control your emotions, if you are unable to control your feelings, you are not a good critical thinker. तो ये लोग जो हैं they are like बहुत ज़्यादा सुकून से काम करते हैं, बहुत पीस के साथ काम करते हैं. They have a smiling face and वो अपना टेम्पर लूज नहीं करते. They do not get angry or they are not reactive. Instead, critical thinkers are proactive. No, how do we differentiate between reactive persons and proactive? Now, reactive वो लोग हैं कि उनके साथ जब भी कोई एक्टिविटी होती है, जब भी कोई इवेंट होता है, तो वो उसके रिस्पॉन्स में जो है वो करते हैं इमीडिएटली, या उस इवेंट होने के बाद दे थिंक कि जी अब हमने क्या करना है. जैसे हम कहते हैं कि फायर फाइटिंग की आग लगेगी तो फिर हम उसको बुझाएंगे, तो व्हाई नॉट कि आप आग लगने से पहले ही उसको बुझाने की बात करें. सो जो लोग आग लगने से पहले इसको इंश्योर करते हैं कि आग लगे ही ना, दोज आर प्रोएक्टिव. यू प्लान इन एडवांस. सो पीपल हु प्लान इन एडवांस, जो पहले से इस चीज को इंश्योर करते हैं कि प्रॉब्लम्स ना हो, हर्डल्स ना हो, जो फोरकास्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को और फोरकास्ट करने के बाद उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं. सो किसी क्राइसिस को आने से पहले ही वो रोक लेते हैं. सो दोज पर्सन्स आर कॉल्ड प्रोएक्टिव पर्सन्स, एंड प्रोएक्टिव पर्सन्स आर वंडरफुल क्रिटिकल थिंकर्स. नाउ another characteristic of good critical thinker is they keep an open mind. Of course, having an open mind is really very important. If you have a closed mind, you will not hear or listen to other person's viewpoints.
So it's really very important that your mind should be flexible. You should give importance to other person's feelings, other person's point of views. If somebody disagrees with you, why not you listen to them? Maybe you find something really great. So this is really very important. They have an open mind and they are highly observant. Very important that critical thinkers, they are highly observant, they are keen observers. They do that situation analysis quickly. They know what they are looking for, and they have a very keen observation. So when you ask them, like for example, आप उनसे कहते हैं कि जी आप you have a department, आपके department में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी performance कैसी है, तो अक्सर हमने देखा कि जब किसी से पूछा गया कि you have a class, आपके पास एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, उन 40 स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि जी हाँ जी सबकी परफॉर्मेंस तकरीबन एक जैसी है। तो जब आप ये कहते हैं कि तमाम की परफॉर्मेंस तकरीबन एक जैसी है, इट मीन्स दैट यू आर नॉट ए गुड क्रिटिकल थिंकर. सो इफ यू आर ए गुड क्रिटिकल थिंकर, यू आर ए कीन ऑब्जर्वर, एंड वंस यू आर बिकम अ कीन ऑब्जर्वर, यू नो द डिफरेंसेस. You know कि कौन सा स्टूडेंट किस तरह का है, कौन से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, कौन से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है. तो जब आप पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, जब हम सुपरवाइजर्स की बात करते हैं, मैनेजर्स की बात करते हैं, तो डेफिनेटली दे मस्ट बी कीन ऑब्जर्वर्स. सो दे शुड लाइक कीप एन आई कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में तमाम एक्टिविटीज़ को वो बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और उसको ऑब्जर्व करने के साथ साथ डेफिनेटली उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, और एज ए प्रोएक्टिव पर्सन उस सिचुएशन को सामने रख के लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे होते हैं. गुड क्रिटिकल थिंकर्स आइडेंटिफाई की इश्यूज एंड रेज क्वेश्चंस. वेरी इंपॉर्टेंट. So good critical thinkers do not want to stay in their comfort zones. So they always want to come out of their comfort zones. So if everything is going smooth, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ठीक रन कर रही है, स्मूथली रन कर रही है, so what does it mean? It means that in the long run you cannot compete in the market, because with the passage of time what is going on that जो आपकी टारगेट मार्केट है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, so your needs and wants of your target market, जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो जो इंटायर पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, दैट इज योर टारगेट मार्केट. तो टारगेट मार्केट की जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो रैपिडली चेंज हो रही हैं. तो अगर आप अपने ऑफिस को कहते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल तमाम चीजें एक ही तरह से अगर आप उसको लेके चल रहे हैं, एंड इफ यू बिलीव कि यही सही तरीका है, इट मीन्स दैट इज अ कंफर्ट जोन. क्योंकि आपने अपनी जो एक्टिविटीज हैं, अपने जो वर्किंग मेथड्स हैं, उसको आपने मार्केट चेंजेस के साथ आपने उसको लेके चलना है, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल कि आप की इश्यूज को रेज करें और की क्वेश्चंस को रेज करें. तो जब आप आइडेंटिफाई करते हैं की इश्यूज को और रेज करते हैं क्वेश्चंस को, सो अक्सर ये कहा जाता है कि जी जब आप क्वेश्चन रेज करते हैं तो क्वेश्चन को रेज करना जो है इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू आंसर. क्योंकि क्वेश्चनिंग माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप क्वेश्चन रेज करते हैं तो दैट क्वेश्चन मे लीड यू टुवर्ड सॉल्यूशन. Obtain relevant facts. Of course, good critical thinkers, they are more interested to collect the relevant facts. So they are interested कि इस वक्त they collect data. Like for example, they collect the primary data and they collect the secondary data. यहाँ थोड़ा सा briefly मैं बता दूं कि how do we differentiate between the primary data and the secondary data. जब आप बात करते हैं प्राइमरी डाटा की कि लाइक फॉर एग्जांपल द डाटा विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट, लाइक फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट, तो जो बुक्स, तो ये चीज़ें जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं और जो आप उसको इमीडिएटली लेस कॉस्ट के साथ, लेस टाइम के साथ आप उसको गैदर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर secondary data. Now when we talk about the primary data, what is the primary data? Primary data is what? Like for example, जो data आप for the very first time collect कर रहे हैं, for example
with the help of questionnaires or with the help of interviews or with the help of your observation or with the help of certain experiments, जो data आप collect कर रहे हैं, that is you have collected that data for the very first time अपनी एक particular problem के लिए, अपने particular एक issue के लिए जो कि आपकी organization face कर रही है. तो जो data आप for the very first time collect करेंगे questionnaire, interview, observation, experiment से, that is called primary data. तो जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं, दे कलेक्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, वो तमाम डाटा लेके देन दे डिसाइड, एंड दिस इज हाउ दे मूव फॉरवर्ड. एंड फाइनली गुड क्रिटिकल थिंकर्स evaluate फाइंडिंग्स एंड फॉर्म जजमेंट्स. सो हाउ डू दे evaluate फाइंडिंग्स? जैसे हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि क्रिटिकल थिंकर्स दे कलेक्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा को जब आप लेके आते हैं, you analyze, तो there are different softwares available जिसके अंदर आप वो डाटा इन करते हैं, उसको इन करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं और देन उसको एनालाइज करने के बाद आप फाइंडिंग्स आप लेके आते हैं और फाइंडिंग्स को सामने रख कर आप यू डेवलप योर judgments, you form your judgments. So this is really very important. So it is a systematic process. So it means that good critical thinkers they do not give judgments without any basis. So with arguments, with evidence, तो जो data support कर रहा है, जब तक आपका data किसी decision को, किसी judgment को support नहीं कर रहा, उस वक्त तक आपका decision strong नहीं हो सकता. को good critical thinker, they are highly careful about this thing. So whatever they do, whatever they decide, and whatever judgment they give, it is always backed by certain facts and figures. Now in thinking critically, we take command of the meanings we create. This is really very important. Now आपने अक्सर देखा होगा कि ऑफिसेस के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर, या एज ए स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जब लोग आपस में दे आर डूइंग कन्वर्सेशन, तो कुछ लोग जब बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि नोबडी इज पेइंग अटेंशन, या एक सरसरी तौर पे सुन रहे होते हैं. सो लिसनिंग की बजाय अक्सर लोग हेयरिंग कर रहे होते हैं. लेकिन आपने कभी ये भी ऑब्जर्व किया होगा इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कि कुछ लोग जब बात कर रहे होते हैं तो everybody is attentive, everybody is listening. So what is the root cause? Reason क्या है? Now the reason is persons who are good critical thinkers, whenever they speak with logic, they speak with evidence, they speak with arguments. So जो बात वो कर रहे हैं, that is credible, that is authentic, उसकी एक सोर्स दे के वो बात कर रहे हैं. तो जब आप एक क्रिटिकल थिंकर हैं, यू आर ए गुड क्रिटिकल थिंकर, तो आप एक बात को सोचेंगे, फिर तोलेंगे, फिर बोलेंगे, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. तो जब आप एक क्रिटिकल थिंकिंग करके, इन डेप्थ एनालिसिस करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, तो उसके अंदर डेफिनेटली उसके पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड दे गिव यू मोर रिस्पेक्ट एंड दे गिव यू मोर वैल्यू. और इसकी मदद से डेफिनेटली वी कैन स्पीडली मूव फॉरवर्ड इन आवर कैरियर. सो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी अपने जो वर्ड्स जो आप बात करते हैं, जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, वो आप हासिल कर पाएं, उसके लिए जरूरी है कि आज से वी शुड स्टार्ट थिंकिंग क्रिटिकली. नाउ समटाइम्स व्हेन आई consider that what tremendous consequences come from little things, I am tempted to think that there are no little things according to Bruce Barton. So this is really very important कि किसी चीज को भी आप छोटा मत समझें. हमारे यहाँ इन पाकिस्तान जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो there are many issues, there are many challenges. तो डेफिनेटली जैसे हमने बात की कि क्रिटिकल थिंकर्स सो दे आर हाईली ऑब्जर्वेंट, दे आर कीन ऑब्जर्वर्स, सो दे आर ऑलवेज व्हेनेवर दे डिसाइड एनीथिंग दैट इज बैक्ड बाय सर्टेन आर्गुमेंट्स, सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स. तो फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेके आप बात करते हैं. नाउ किसी भी चीज को आप माइनर मत समझें. लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मोस्ट important change we need in the public sector of Pakistan is of having a positive attitude and behavior. Now, if there is a slight change in the
positive, like for example change in the attitude and behavior of our employees, अगर एक minor सी slight सी भी change आती है तो as a good critical thinker you must be highly observant. You must know कि what are the root causes, कि अगर कोई attitude behavior में negativity आई है तो what are the root causes. तो initial stages पे जब आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं तो वो कंट्रोलेबल होती है. लेकिन जो वक्त गुजरता है, अगर आप माइनर किस्म की भी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो व्हाट विल हैपन इन द लॉन्ग रन कि जो चीज़ें पहले कंट्रोलेबल थी डेफिनेटली वो बाद में आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं. तो एज ए गुड क्रिटिकल थिंकर दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू फोकस ऑन minor issues as well as the major issues. This is really very important for you as a good critical thinker. Okay, now let us discuss that what we have discussed in our today's lecture. Okay, today we have discussed about a wonderful topic, and that is the role of critical thinking in public sector organizations in Pakistan. This is really very important. So when you think about critical thinking, what comes in your mind? Like thinking of thinking, unlimited thinking, thinking outside the box, open mind thinking. So things like that comes in our mind when we talk about critical thinking. Now when we talk about out of the box thinking, according to Albert Einstein, we need to come outside the box. Now what is that box? Now that box is, like for example, when we trap our mind, when we limit ourselves to our own perception. Like for example, if I say that all is true whatever I say and I am the authority and nobody else has any better idea and I am the perfect. So if you think like this, and if you think that you are a perfect person and you know everything and all others they know less than you, and you are the most competent person in the world, I think that is not a good thinking, that is not critical thinking. So in order to move towards critical thinking, what you need to do is you need to come out of that box. Like for example, when we talk about the public sector of Pakistan, people have developed certain habits. Like for example, आप अपने ऑफिस में आते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं? Okay, honestly speaking, बहुत से लोग ऑफिस में आने के बाद दे रीड न्यूज़पेपर्स. ओके, न्यूज़पेपर्स पढ़ने के बाद आप क्या करते हैं? ओके, पाकिस्तान में जो बहुत एक ज़्यादा काम किया जाता है दैट इज टी. सो दे टेक टी. न्यूज़पेपर आपने पढ़ लिया, आपने चाय पी ली. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप चाय मत पिए, बट द थिंग इज कि एक उसको थोड़ा सा आप एक टाइम लिमिट दें कि आप अपनी जो आपकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनके लिए टाइम जो है वो आपको जो पे किया जा रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए पे किया जा रहा है. तो आप अपनी थोड़ा सा इन एक्टिविटीज़ को जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको आप थोड़ा सा टाइम लिमिट के अंदर रखें. कि लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक दो घंटे तक हमारे यहाँ अगर हमने ऑब्जर्व किया कि लोग अगर चाय पीने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उसके ऊपर 2-3 घंटे डिस्कशंस कर रहे हैं, दैट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल. तो अगर इस तरह की कोई हैबिट्स अगर कुछ लोगों की हैं पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान में कि दे वेस्ट देयर टाइम ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर्स ऑल द टाइम, और दे वेस्ट देयर टाइम ऑन हैविंग those unnecessary discussions on different things, or they waste their time of 1 or 2 hours on just having tea or just on for eating purposes. So this is not recommended. So we are responsible क्योंकि in public sector of Pakistan as a public servant, ये जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं ये तमाम पाकिस्तान की अवाम के टैक्सेस से चल रहे हैं. तो जब पाकिस्तान की अवाम के टैक्सेस से, उनके खून पसीने की कमाई से ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रही हैं, तो डेफिनेटली हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करना है, ओन करना है.
एंड व्हेन वी डेवलप दैट वंडरफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम फील करना शुरू कर देते हैं, जब आप सेंस ऑफ ओनरशिप लेके आते हैं, तो डेफिनेटली वी मूव टुवर्ड्स क्रिटिकल थिंकिंग. सो ये जो कंफर्ट जोन है, ये जो बॉक्स की बात की एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि वी नीड टू कम आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, इसका मतलब ये है कि जो हमारी एक हैबिट्स हैं, जो हमें कंफर्ट जोन में हमें लेके बैठी हुई हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल वेज ऑफ वर्किंग हैं, उनको हमें छोड़ने की जरूरत है. एंड वी नीड टू मूव टुवर्ड्स द जोन ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो कंफर्ट जोन जो है, जो आपका बॉक्स है, जिसको हम कंफर्ट जोन कह रहे हैं, उससे बाहर निकल के आके आपको जोन ऑफ अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव करना है. और ऑफ कोर्स दैट नीड्स ऑफ कोर्स सैक्रिफाइस. आपको एफर्ट्स करनी है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको हार्ड वर्क करना है, आपको अपनी कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज करना है, थिंग्स लाइक दैट. एंड देन जब हमने आज क्रिटिकल थिंकिंग की बात की कि इन पब्लिक सेक्टर की जब हम बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स क्रिटिकल थिंकिंग इज रिक्वायर्ड. नाउ क्रिटिकल थिंकर्स की जब हमने बात की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग. वन इज एमलेस थिंकिंग, द अदर इज हाई क्वालिटी थिंकिंग. आज के लेक्चर में हमने बात की कि व्हाट इज एमलेस थिंकिंग. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग without any purpose, without any conclusion, that is aimless thinking. Like for example, your thinking is roaming around, or you are thinking randomly, and you are not moving towards any conclusion. आप किसी चीज को सोचते हैं, you are not moving towards its conclusion, or you do not have a purpose. So any thinking that lacks a purpose is aimless thinking. On the other side, when you talk about high quality thinking, now what does high quality thinking mean? Now high quality thinking means that any thinking that has a purpose, any thinking that has certain objectives, any thinking after that thinking you move towards a solution. So any thinking which has a purpose and that moves you towards a solution, that is high quality thinking. So critical thinker जो हैं, they have like they are involved in high level thinking, high quality thinking, and that is why they utilize their time well. So as a student, I advise all of you कि आप आज से तय कर लें कि बल्कि अभी से आप तय कर लें कि आपने हाई क्वालिटी थिंकिंग की तरफ मूव करना है. आप जो चीज़ भी सोचेंगे, आप जो चीज़ भी आप करना चाहेंगे, डेफिनेटली आप उसके बारे में पहले प्लान करते हैं, आप थिंकिंग करते हैं. तो आप एक पर्पस को सामने रख के जब आप प्लान करते हैं, जब आप थिंकिंग करते हैं, तो डेफिनेटली उससे आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं. तो डेफिनेटली हाई क्वालिटी थिंकिंग जो है वो आपकी बेटर टाइम यूटिलाइजेशन है, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, एंड दैट इज़ गुड फॉर यू एज ए इंडिविजुअल, एंड दैट इज़ गुड for the organization, and that is good for Pakistan. Okay. In today's lecture, we have also talked about different thinking errors. Like for example, in public sector of Pakistan, there are many challenges, there are many issues we face, and one of them is there are thinking errors. Like for example, some people, they refuse to accept the ground reality. So they go into denial. They do not accept the ground reality. So if the ground reality is something else and on paper there is something else, so if that doesn't match, it will not work. So we need to motivate our employees. We need to, reward them well. We need to take care of their needs and wants. So हमें ground reality के मुताबिक we need to act. So when we are not following that ground reality, और जब हम denial में चले जाते हैं, तो of course we cannot motivate our employees. So what we need to do, we need to create a supportive environment. अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जी we can motivate people through training workshops, through training sessions. But of course ये जो training workshops हैं, training sessions हैं, ये awareness create कर रही हैं. लेकिन इससे भी ज़्यादा जो important चीज़ है कि in order to motivate people in the public sector of Pakistan, we need to create a highly supportive environment. So how we can do that? So money is one factor, salary is one factor. There are so many other factors. Like for example, promotion is one thing.
Training and development is another thing. So with the help of training and development of our employees, we can create a highly supportive environment. By giving them promotional opportunities, we can create a highly supportive environment. Top management support is really very important. So whenever we talk about improving the efficiency and effectiveness of our employees, we need to motivate them, we need to support them. So if the top management is able to fully support its employees, that is really wonderful for an organization. So good critical thinkers, what they do is they always support their subordinates, they always support their team members. Okay, and then of course relationship building. I always say one thing, that where are the real meanings of words? Okay, what comes in your mind when we talk about where are the real meanings of words? The real meanings of words are in the people. The real meanings of words are in the relationships. Like for example, आपका टीचर आपको एक बात कहता है तो आप उस पर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, और वही बात अगर आपको कोई और पर्सन कहता है, अननोन पर्सन कहता है, तो आप किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं. तो इट मीन्स दैट के वर्ड्स आर सेम but your response is different. So why your response is different? Because of that relationship with that person जिसने आपको वो बात कही है. तो this is really very important. वो जो relationship की basis हैं, that is based on maybe love, that is based on respect, that is based maybe on fear, and that is based maybe on some लालच भी हो सकता है, आपकी greediness भी हो सकती है कि आपको कोई reward चाहिए, आपको कोई आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप किसी को लव करते हैं, आपको किसी से डर लगता है. सो दैट इज वाई आप एक उसकी बात के ऊपर एक पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं. तो जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वी नीड टू फोकस ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग. जैसे हम बात करते हैं कि व्हेन वी हैव स्ट्रॉन्गर रिलेशंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशंस, तो एम्प्लॉय लॉयल्टी इंक्रीजेस. And when employee loyalty increases, it means that they will do their best. So this is really very important कि we need to make our employees loyal. और loyalty के लिए ज़रूरी है कि we need to focus on their strengths, and we need to focus on their abilities, and we need to do something. So in this way, they may develop good relationships with the top management, with their colleagues, with their juniors, and with their seniors. So there are many things one can do as a good critical thinker. Now there is another important phenomena when we talk about the public sector of Pakistan, that is selective abstraction. Like for example, if something is happening to you, so for example, you evaluate a person's performance based on one factor. Like for example, if one person is slow in working, so based on only one factor, you evaluate the entire performance of that person, which is totally incorrect. So that is another thinking error made by some of the people in the public sector of Pakistan, that you need to focus on the entire features or factors of that person. Like for example, what about the competency of that person, what about the discipline of that person, what about the qualification and experience factors. So when you are evaluating a person in your organization, you need to focus on that person in totality. So when you focus that person in totality, of course that gives you a better result instead if you focus on only one factor. Finally, I would say that today we have discussed a wonderful topic, and so when you apply this topic in your offices, when you apply this topic at your home, when you apply this topic in your social circle, and the most important thing is when you apply this topic as a student, you can get wonderful benefits. I hope that कि आज हमने काफ़ी डिस्कशन की इसके ऊपर. We have learned a lot, and I believe that कि इस लेक्चर को आप इसको एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लेंगे. And if you have anything in your mind, you can consult the material, you can consult the internet, and usko further आप as a good critical thinker, you can explore further कि what other opportunities we may gain in the public sector of Pakistan with the help of good critical thinking. Thank you very much. I believe that you have enjoyed our today's discussion. Inshallah, see you in the next lecture. Khuda Hafiz.